Yes. Good morning, everyone. So we'll continue with the defects or imperfection in crystal lattice. In crystalline solid, we had seen so many types of defect. The first which we had seen is a point defect, and point defect is of three types. The first type of point defect is stoichiometric point defect. So ये first type stoichiometric point defect, which is of four types: vacancy defect, self-interstitial point defect, Schottky defect, and Frankel defect. Now the second was impurity defect. So this is what we have to see: impurity defect. In what happens in impurity defect? In place of host atoms or particles, some foreign particles or atoms occupy the lattice point. In place of host atoms or particles, some foreign atoms or particles, they occupy lattice point, and thus create impurity defect. तो प्योर मेटल क्रिस्टल है, उसके जो होस्ट एटम या पार्टिकल्स हैं, उसके जगह पे क्या आ जाएंगे? कुछ आउटसाइडर atoms or particles, they come and occupy the lattice point. Such defect is what we call as impurity defect. To discuss it further, impurity defect is divided into two types. Impurity defect is divided into two types. The first type is what? Substitutional. First is substitutional defect, and this is something very important: substitutional impurity defect. This is what somewhat intentional defect created in pure metal crystal. Substitutional impurity defect. तो कल ये डिस्कशन हमारा शुरू था. We will continue with this part, substitutional impurity defect. So some foreign particles or atoms are added into pure metal crystal. In pure metal crystal, some other particles of almost same size are added in place of host particles. होस्ट पार्टिकल से मतलब क्या है? जो ओरिजिनल लेटिस पॉइंट पे पार्टिकल्स प्लेस्ड है, दे आर व्हाट वी कॉल एज in place of host particles, is known as substitutional impurity defect. और इसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, यस, एलॉय फॉर्मेशन है ना. सॉलिड सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, solid solution, example is alloy. और alloy में भी एक सबसे easy to draw and to remember is alloy is brass, which is made up of copper and zinc. So what happens in this substitutional impurity defect? Alloy such as brass is made up of brass is made up of copper and zinc. Basically it is made up of copper, and some atoms of copper
get replaced by zinc. So we add zinc in place of copper because they have almost the same size. So can be easily replaced and can be easily accommodated. तो ये अगर सारे कॉपर के पार्टिकल्स हैं तो इसमें कुछ पार्टिकल्स हम जिंक के ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ पर ये जिंक पार्टिकल ऐड कर दिया. So it is in place of copper, zinc is coming. So we see here that zinc occupies the lattice point of copper. Zinc occupies the lattice point. So all these other lattice points are covered by copper metal ions. So copper ions, they occupy lattice point, impurity in the form of zinc. So zinc in the form of impurity. Zinc in the form of impurity. ये डायग्राम बनाएंगे तो जल्दी याद रहेगा आपको. So this is what substitutional impurity defect. The crystal lattice is of brass. इसी वैकेंसी डिफेक्ट को एक और तरीके से पढ़ते हैं. वैकेंसी एलियोवेलेंट, इधर भी एलियोवेरा आ गया, एलियोवेलेंट impurity. Vacancy created by एलियोवेलेंट impurities. एलियोवेलेंट यानी ऐसा एलिमेंट जिसके पास में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयन हम यहाँ ऐड करने वाले हैं. एलियोवेलेंट मीन्स व्हाट? जैसे आपके पास में निकल है Ni2+, आपके पास निकल है Ni3+, आपके पास निकल है Ni4+, कॉपर है 2+, कॉपर 1+, Fe2+, Fe3+. तो ओरिजिनल जो सेटिंग रहेगी, ओरिजिनल जो अरेंजमेंट है वो रहेगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के मेटल आयंस का. जैसे ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के मेटल आयंस है. अब इसमें एक इंप्यूरिटी हम ऐड कर देंगे जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाली इंप्यूरिटी ऐड कर देंगे. तो उससे क्या होगा? हायर वाला एक के बराबर हो जाएगा. इट विल क्रिएट सर्टेन काइंड ऑफ वैकेंसी. कैसे होगी क्रिएट? तो पहले मैं फिर से एक बार एलियोवेलेंट impurity means impurity of the same metal with higher oxidation state. Impurity of the same metal with higher oxidation state when added, that will create some vacancy. That will create some vacancy. जैसे इसका एक एग्जाम्पल है आपके पास में, क्या है? निकल. इट इज ऑफ निकल और इट इज ऑफ सोडियम क्लोराइड. ओके, तो एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का. तो सोडियम क्लोराइड में अब इसमें बड़ा छोटा थोड़ा सा बनाना पड़ेगा हमको, साइज को ऑल्टरनेटली चेंज कर देना पड़ेगा. तो बिगर साइज इज हियर, बिगर साइज, नेगेटिवली चार्ज. तो Na is positively charged, chloride negatively charged, Na positive, chloride negative. यहाँ पर chloride bigger in size, sodium smaller in size,
again chloride bigger in size, sodium smaller in size, sodium smaller in size, chloride is bigger in size. तो ये क्रिस्टल बन गया NaCl का, ये क्रिस्टल बन गया आपका NaCl का, और इसमें एनायन कैटायन हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है साइज में, बट दे हैव दैट डिफरेंस इन देयर एटॉमिक साइज. So here sodium is having +1 oxidation state, chloride is having +-1 oxidation state. रेशियो बराबर मेंटेन है, कैटायन एनायन का रेशियो मेंटेन है. अब इसमें क्या करते हैं, एक इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा रहेगी, जैसे स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड SrCl2. SrCl2 strontium is having +2 oxidation state. If we add one strontium ion in place of sodium, sodium monovalent, sodium is monovalent, strontium is bivalent, करेक्ट है. अगर हम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्शियम ऐड कर देते हैं, Sr2+ आ गया, तो ये Sr क्या करेगा, इसका इफेक्ट ये थोड़ा बोलेंगे आप लोग. व्हाट विल हैपन, एक Sr को यहाँ पर आपने ऐड कर दिया, तो वो कितने क्लोरीन के साथ कंबाइन हो सकता है, इट विल कंबाइन विथ 2 क्लोराइड आयंस, करेक्ट है. तो यहां से 2 क्लोराइड आयन चले गए. सोडियम आयन मिसिंग होंगे. The added chloride ion occupies some of the regular site of sodium ion. I am so sorry, क्या हो गया, why so, सही है यो. This will create vacancy for sodium ion. Okay, cation will be replaced by another cation. Aliovalent impurity vacancy, aliovalent vacancy. कैसे गलती होगी मुझसे, आई एम सो सॉरी. एनीवेज, कमिंग बैक टू, इफ वी ऐड स्ट्रॉन्शियम विच इज अ कैटायन, दिस विल रिप्लेस सोडियम आयन. एक रिप्लेस करेगा 2 सोडियम आयन को. अब 2 सोडियम आयन के बदले एक से तो बॉन्ड बना लेगा वो, एक सोडियम को रिप्लेस करा, दूसरे सोडियम को रिप्लेस किया, 2 सोडियम आयन यहां से चले गए. लेकिन वैकेंसी किसकी क्रिएट होगी, एक सोडियम की या 2 सोडियम की वैकेंसी? 2 सोडियम की वैकेंसी क्रिएट होगी. 2 सोडियम की वैकेंसी क्रिएट होगी या एक सोडियम की वैकेंसी क्रिएट होगी? 2 सोडियम. 2 सोडियम के बराबर एक स्ट्रॉन्शियम, 2 वैकेंसी क्रिएट होगी. तो अब यहां पर ये जो वैकेंसी बन गई, दिस वैकेंसी इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्शियम. ऐसा एक और स्ट्रॉन्शियम ऐड कर देंगे तो वो फिर से कैटायन की जगह पे आएगा और वैकेंसी यहां पर क्रिएट हो जाएगी. तो वैकेंसी क्रिएट किसके कारण हो रही है, एलियोवेलेंट कैटायन के कारण. एलियोवेलेंट कैटायंस दैट इज हैविंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला अगर एनायन कैटायन हमने ऐड किया तो वो सोडियम के जगह आ जाएगा, एंड दैट विल क्रिएट द वैकेंसी हियर, एंड दिस इज व्हाट अगेन वी कॉल एज इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. इम्प्यूरिटी डिफेक्ट क्यों है, क्योंकि उसने क्या किया है, यहां पर हमने स्ट्रॉन्शियम ऐड किया. स्ट्रॉन्शियम ऐड करने से ये स्ट्रॉन्शियम ने तो ये लेटिस पॉइंट कवर कर लिया, ठीक है. स्ट्रॉन्शियम ने लेटिस पॉइंट सोडियम का कवर कर लिया. स्ट्रॉन्शियम ने सोडियम का लेटिस पॉइंट कवर किया और वैकेंसी यहां पर क्रिएट हो गई.
and that is why we call as vacancy defect created by aliovalent impurity. Vacancy defect created by aliovalent impurity. फिर से एक बार, aliovalent impurity क्या हो रहा है? Impurity which is of higher oxidation state. लोअर के जगह पे उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी एक लोअर का लेटिस पॉइंट कौन ऑक्यूपाई करेगा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, है ना। हायर ऑक्सीडेशन वाले ने लेटिस पॉइंट कवर किया लोअर वाले का, और एक वैकेंसी वहां क्रिएट हो गई। क्यों क्रिएट हो जाएगी? क्योंकि ये क्लोराइड और ये क्लोराइड तो उसके साथ कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन बाइवेलेंट होने से वहां पर एक सोडियम की वैकेंसी क्रिएट हो गई। किसकी वैकेंसी क्रिएट होने वाली है? सोडियम की, क्योंकि सोडियम की जरूरत कौन पूरी कर रहा है? स्ट्रोंशियम। तो एक सोडियम की वैकेंसी वहां पर क्रिएट हो गई है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज वैकेंसी इन एलियोवेलेंट इम्प्यूरिटी से जो वैकेंसी क्रिएट हो गई, दिस इज द अदर टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। नेक्स्ट क्या है फिर इसके बाद? इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल, एक सोडियम के वजह से, क्योंकि वो उसका लेटिस पॉइंट कवर करता है, उसका लेटिस पॉइंट पे एसआर आ गया। अब ये एसआर दो क्लोराइड से करेगा, तो रिप्लेस किसको करा उसने? सोडियम को करा। एक ऑक्यूपाई कर लिया और एक रिप्लेस किया। जैसे यहां पर दो स्टूडेंट की जगह पे एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट की जगह पे एक स्टूडेंट, तो एक तो ये दो चेयर दो सोडियम, इस पे लाके एक स्ट्रोंशियम को बैठा दिया। स्ट्रोंशियम क्या करेगा? एक चेयर तो सोडियम की ऑक्यूपाई करेगा ही, और दूसरी वाली चेयर को खाली रहने देगा। तो दैट इज व्हाट वैकेंसी क्रिएटेड बाय कैटायन। करेक्ट है? तो ऑक्यूपाई तो करेगा लेटिस पॉइंट, ये कहां रहेगा? इसको लेटिस पॉइंट तो मिलना चाहिए, तो ये एक सोडियम के लेटिस पॉइंट को कवर करेगा और दूसरे सोडियम का वैकेंसी वहां पर क्रिएट हो जाएगा। सो दिस इज द सेकेंड सब्स्टिट्यूशनल impurity defect. Now we will move to interstitial impurity defect. Interstitial impurity defect. अब ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इसमें इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट को दो तरीके से पढ़ सकते हैं, एक एक्स्ट्रा वाला। इन दिस डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल का कहाँ डायग्राम बना है? बिना डायग्राम के तो समझेगा नहीं, यहां बनाते। इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, इसका भी बेस्ट एग्जांपल है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, है ना। फिर से लिखते हैं यहां पर इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो ये सेकेंड टाइप हो गया इम्प्यूरिटी का, सेकेंड टाइप इम्प्यूरिटी डिफेक्ट का सेकेंड टाइप। इसका बेस्ट एग्जांपल, जैसे ये आ गया, इसका एग्जांपल स्टील को याद करें आप। आयरन एंड स्टील, है ना। आयरन और स्टील में फर्क क्या हो रहा है कि आयरन यानी प्योर आयरन इन इट, स्टील में क्या है? इट इज एन एलॉय, स्टील इज एन एलॉय। तो जैसे हम स्टेनलेस स्टील देखते हैं, स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं, तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है कि देर आर अदर मेटल्स अलोंग विथ आयरन एंड सम कार्बन इम्प्यूरिटी इज एडेड टू improve its क्वालिटी। तो आयरन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हम एलॉय बनाते हैं स्टील, और वो स्टील में कार्बन पार्टिकल्स दे ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल स्पेस, बिकॉज एज कंपेयर टू आयरन द साइज ऑफ कार्बन पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। सो ये सब आयरन पार्टिकल्स हो गए, आयरन एटम हो गए, दे आर ऑक्यूपाइंग देयर लेटिस पॉइंट।
इनका अपना अरेंजमेंट है, और इसके जो इंटरस्टिशियल स्पेस है that is being occupied by carbon particles, and this gives the strength to steel. तो यहां पर ये आयरन इम्प्यूरिटी, सॉरी कार्बन इम्प्यूरिटी at interstitial site, और this is what steel. तो क्या बोल सकते हैं इसमें हम, अब अगर लिखना है, ये समझ तो गया फंडा, लिखना है तो क्या लिखेंगे, interstitial impurities. In this type of defect, the lattice points are occupied by the metal ions. The interstitial space between these metal ions are occupied by smaller size impurities. Smaller size impurities which occupies the interstitial space, and this is done to improve the quality of metal itself. In case of steel, the lattice points are covered by iron, metal ions, and interstitial space are occupied by carbon particles. So carbon as an impurity added in iron during the manufacturing of steel, and this is an example of interstitial impurity defect. तो impurity add कर रहे हैं intentionally, है ना, intentionally impurity add कर रहे हैं so that we can have a better quality of compounds here. Now next comes the third type of defect, and that is non-stoichiometric defect. अब ये भी उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, non-stoichiometric. Non-stoichiometric defect. अच्छा, इसमें क्वालिटी इंप्रूव होगी तो क्या होगा, मास बढ़ेगा, अगर हम उसकी प्रॉपर्टी की बात करें, डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो वैकेंट स्पेस थी, यानी जो इंटरस्टिशियल स्पेस थी वही ऑक्यूपाइड हुआ, है ना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं हुआ. तो कार्बन पार्टिकल्स एज इम्प्यूरिटी एट इंटरस्टिशियल साइट्स, this is what interstitial impurity defect. Now moving to the third type, or other the C इसको हमने दिया था, non stoichiometric defect. non वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो स्पेस उसके पास खाली है, जगह है जो इंटरस्टिशियल, वहीं पर रखा उसने. जैसा ये चेयर लगी हुई है और आपको किसी को वहां बीच में अपने साथ में बैठाना है, आपने एक छोटा सा स्टूल लाके रख दिया, बैठ जा भाई यहाँ पर, छोटा वाला, विदाउट डिस्टर्बिंग द अरेंजमेंट. विदाउट डिस्टर्बिंग द अरेंजमेंट एक छोटा सा प्रोविजन कर दिया कि हाँ यू कैन हैव अ प्लेस हियर. तो उससे क्या वॉल्यूम बढ़ेगा, क्या रूम का साइज तो उतना ही है, अरेंजमेंट तो वैसा ही है, सिर्फ कुछ वैकेंट स्पेस दिखी तो वहां पर ऑक्यूपाई कर ली. आप बैठे हैं, आपने अपना बैग वहां पर रख दिया, बैग अगर यहाँ बीच में रखा है तो इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई, आप एज ए पार्टिकल अरेंज है, यहाँ पर बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस है, अपना बैग आपने रख दिया, वॉल्यूम बढ़ेगा क्या, नहीं, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा. ठीक है, ओके. नॉन स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट. अब नॉन स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा, ये वर्ड पे ही सारा खेल है. नॉन स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट कि जो फॉर्मूले में एटॉमिक और आयोनिक रेशियो है, एटॉमिक और आयोनिक रेशियो दैट गेट डिस्टर्ब्ड. एटॉमिक और आयोनिक रेशियो
If that get changed, then the defect is created, and that defect is known as non-stoichiometric defect. और यूजुअली ये कौन से कंपाउंड में होता है? मेटल कंपाउंड्स में. मेटेलिक कंपाउंड्स में दिस डिफेक्ट इज क्वाइट कॉमन, where atomic or ionic ratio get changed, और उसके चेंज होने से जो डिफेक्ट क्रिएट होगा दैट इज व्हाट वी कॉल एज नॉन स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट. अब इसमें समझने के लिए और 2 पॉइंट एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे. फिर से एक बार, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन स्टाइचियोमेट्रिक defect? The defect which is created by the change in the ratio of atoms or ions. जो cations और anions है उसका रेशियो या एटॉमिक रेशियो चेंज होने से जो डिफेक्ट क्रिएट होगा उसे कहेंगे नॉन स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट. एज जो उसका अपना रेगुलर फॉर्मूला, उससे हटके उसमें अगर रेशियो चेंज होता है तो फिर वो क्या बनेगा? नॉन स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट. अब नॉन स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट को अपने को समझने का है, तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट फर्स्ट टाइप इसमें. फर्स्ट मेटल डेफिशिएंसी. मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इसमें क्या होगा? अब यहां एग्जाम्पल था वो निकल ऑक्साइड का. Okay, metal deficiency defect. This is possible in those compounds. अब यहाँ पर भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात आई. It is observed in those metal compounds which have same metal ions with variable oxidation state. Variable oxidation state. यहाँ वो पट्टा लगाना था और मैं गलती से उधर भी लगा दिया था. कहाँ लग गया था वो? एलियोवेलेंट में. तो वेरिएबल सेम मेटल आयन with variable oxidation state. Same metal ion with variable oxidation state. So metal compounds सबसे important है. metal compounds metals होना चाहिए. cations are being replaced which have same metal ion with variable oxidation state. अब इसमें क्या होगा? एक एग्जाम्पल निकल ऑक्साइड का लेते हैं. अब निकल ऑक्साइड का यहाँ डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं. अब निकल केटायन है, स्मॉलर इन साइज. ऑक्सीजन O2 माइनस, लिटिल बिगर इन साइज. तो ये निकल को ड्रॉ करते हैं. Ni2 प्लस. यहाँ निकल ऑक्साइड में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट, निकल ऑक्साइड में निकल इज 2 प्लस, ऑक्सीजन इज 2 माइनस. करेक्ट है. तो यहाँ पर ये निकल ऑक्साइड का मेटल क्रिस्टल बना के ऑक्सीजन -2, निकल +2 लाइक दिस. ये जो अरेंजमेंट रहेगा इसमें क्या करेंगे कि जो कैटायन है, अब बड़ा होना चाहिए, O2 माइनस, निकल +2, O -2, निकल +2, and here is 2 माइनस. एक और बना लेते ज़्यादा इजी है. स्मॉलर, बिगर, स्मॉलर, बिगर, स्मॉल. ज़्यादा स्मॉल Ni2 प्लस 2 प्लस O2
हाँ जी, क्या होगा इसमें? चलिए बोलेंगे। Ni2 प्लस है, इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एलिमेंट होगा जो मैं वहाँ एक्सप्लेन कर रहा था कि निकल 2 प्लस भी पॉसिबल है, निकल 3 प्लस भी पॉसिबल है, निकल 4 प्लस भी पॉसिबल है। अब 4 प्लस वाला ज़्यादा अनस्टेबल होता है तो यूजुअली 2 प्लस और 3 प्लस रहता है। यहाँ पर निकल 2 प्लस वाला है। अब नॉन स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट और उसमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके, क्या हो रहा है बाबू? कॉल आ रही है? ओके, चलिए जी। तो अब इसमें एक इम्प्योरिटी, इसमें एक दूसरा मेटल कैटायन ऐड करते हैं जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है। ऑलमोस्ट एलियोवेलेंट के जैसा ही है, ये भी डिफेक्ट है ना। लेकिन यहाँ क्या होगा, अब जैसे Ni2 प्लस के जगह Ni3 प्लस हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, दिस इज Ni3 प्लस। Ni3 प्लस को ऐड करते हैं तो इसने तो लेटिस पॉइंट निकल का ही ऑक्यूपाई किया होगा, निकल का ही इसने लेटिस पॉइंट ऑक्यूपाई किया है। अब डिफेक्ट किसका क्रिएट होगा? वैकेंसी क्रिएट होने वाली है, तो वैकेंसी किससे क्रिएट होगी? क्लोराइड की, ऑक्सीजन की या निकल की? किसकी वैकेंसी क्रिएट होगी? ऑक्सीजन या निकल? निकल की। तो एक निकल यहाँ से वैकेंसी क्रिएट करेगा, तो ये निकल ने यहाँ से वैकेंसी क्रिएट कर दिया, तो ये वैकेंसी क्रिएट हो गई। Now what is the difference between this and the aliovalent? What is the difference between this and aliovalent? बोलिए बोलिए। एलियोवेलेंट में भी हम हायर वैलेंसी वाला ऐड कर रहे थे, लेकिन वो स्टाइचोमेट्री, वो इम्प्योरिटी के फॉर्म में एडेड था। NaCl में हमने ऐड किया था SrCl, NaCl में SrCl2 ऐड किया था, ये एलियोवेलेंट में है ना, कि NaCl का क्रिस्टल था और उसमें हमने स्ट्रोंशियम क्लोराइड को ऐड किया था, तो ये ऑल टुगेदर डिफरेंट था। ये सोडियम कैटायन, ये स्ट्रोंशियम कैटायन, this is added in the form of impurity. Here this nickel is not added as a impurity. ये निकल का क्रिस्टल है, निकल का ही रहेगा, दूसरे कुछ भी एलिमेंट इसमें ऐड नहीं हो रहा है। ऐड क्या कर रहे हैं हम? ऐड कौन सा कर रहे हैं? सेम मेटल आयन विथ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट इज द डिफरेंस कि Ni2 प्लस के जगह Ni3 प्लस आ रहा है, तो उसकी जो बेसिक केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होगी। यहाँ पर बेसिक केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, बिकॉज Ni3 प्लस हैज बीन एडेड इन प्लेस ऑफ Ni2 प्लस। तो ये स्टाइचोमेट्री यहाँ पर चेंज हो जाएगी। स्टाइचोमेट्री में क्या चेंज होगा? अगर हमने निकल और ऑक्सीजन ये दोनों को 1-1 कंसीडर किया, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स हो जाएगा, एक रेशियो में ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। कुछ तो कम हुआ है, एक निकल एटम, दो निकल एटम, सॉरी निकल आयन, एक निकल आयन और दो निकल आयन इसमें से कम हुए हैं, तो वो कम जो होंगे दैट क्रिएट्स द डिफेक्ट, और वो डेफिशिएंसी, इसीलिए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट नाम भी वैसे ही दिया हुआ है कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल कौन सा? वही मेटल ऐड करना जिसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल हो, और उसका जो रेशियो है दैट रेशियो गेट चेंज, एंड देयरफॉर वी कॉल नॉन स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट। सही है?
ये इसके साथ कंपेयर किया तो कंफ्यूजन दूर हो गया अभी। एलियोवेलेंट और ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में डिफरेंस दोनों का याद रहेगा। यहाँ एज अ इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट का ही चाहिए, और यहाँ भी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, बट ऑफ द सेम मेटल आयन। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नेक्स्ट इसी में है नॉन स्टाइचोमेट्री का सेकेंड, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होगा कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहां पर सेम मेटल आयन ऑक्यूपाई कर लेगा, एक्स्ट्रा मेटल आएगा। एक्स्ट्रा मेटल कहाँ से आएगा? समवेयर फ्रॉम द मेटल क्रिस्टल इटसेल्फ। ये भी थोड़ा सा समझ लेंगे फंडा। जैसे अपने पास में यहाँ पर ये जिंक ऑक्साइड को कंसीडर करो, ZnO, जिंक ऑक्साइड। तो ऑक्साइड वाले बड़े बनाने पड़ेंगे, NiN। स्मॉल, बिगर, स्मॉल एंड बिगर। तो यहाँ ये जिंक आयन, ये ऑक्सीजन, जिंक आयन एंड ऑक्सीजन, जिंक आयन, ऑक्सीजन आयन, जिंक आयन, ऑक्सीजन आयन। O2 क्यों लिख रहे हैं? हाँ, जिंक 2 प्लस, Zn2 प्लस, O2 माइनस, Zn2 प्लस, O2 माइनस। हाँ, मीटिंग खत्म हो गई। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, बस अब एक समझा देता हूँ।